Thank you very much. Thank you. हेलो बेटा जी तिलक कैसे लगाते हैं सीखो। क्या शुभ नाम है आपका? आकांक्षा। आपका? निधि। स्नेहा। वेरी गुड, बहुत सुंदर नाम है। तिलक कैसे लगाते हैं? पहले इससे लगाते हैं फिर अंगूठे से। अंगूठी से। देखिए हम लगाते हैं। आइए आइए श्रीवास्तव जी, हम आपको लगाते हैं, है ना? ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है ठीक है। यहाँ के। पहली बात तो अक्षत साथ में नहीं लगाते हैं, अच्छा, बाद में बिना अक्षत के करते हैं, फिर यहाँ से करके ऐसे करते हैं और फिर अक्षत लेके लगाते हैं और फिर तिलक लगाना सीखो मैडम। ऐसे ऐसे करिए, ऐसे करो, दोबारा से लगाओ बेटा। इसकी आवश्यकता नहीं है। दोबारा से ये जो मिला है आपको ट्रेनिंग थी। अब इसी तरीके से लगाना है अक्षर। यस, करेक्ट। और पीछे फेंकते हैं। यस। अब ये अच्छे से समझना आज नेट पे जाके। पूरा शुभ नाम बताओ। आकांक्षा त्यागी हो मैडम जी, आपको तो आना चाहिए ये। निधि यादव। यादव मैडम आप तो यदुवंशी हो, आपको तो आना ही चाहिए। नेहा सिंह राजपूत। वेरी गुड, बताओ राजपूतों को यादवों को तिलक कैसे लगाते हैं? राजपूत तो एक कदम भी घर से बाहर नहीं निकलते जब तक अच्छे से तिलक ना हो। इसकी आवश्यकता नहीं है मैडम, इसमें बना भी नहीं हुआ है उसका। कोई नहीं ना, ठीक है ना? बाकी सबको लगा दीजिए। बिल्कुल इंडिपेंडेंट अपना करते रहिए। आइए। निधि वेरी गुड। सब लोग आइए साथ में। सर सर को बिठाइए। सर आइए। बैच लगा इधर भी देखिए थोड़ा। मैम कहाँ है? मैम इधर देखिए। Empirically illustrates the idea of continuous learning and growth. It suggests that, like rivers constantly flow into the ocean without disturbing its calmness, a wise person continuously absorbs knowledge and experiences without being unsettled by desires and distractions.
This emphasizes the importance of study, pursuit of knowledge, and growth in achieving inner peace and wisdom. With these ancient words of wisdom that emphasize lifelong learning, I welcome our esteemed guests, deans, HODs, and fellow participants with a very warm namaskara to this 5-day faculty development program on recent innovation and novel concepts of sustainable development, organized jointly by the Department of Civil Engineering and Department of Applied Sciences of Galgonia's College of Engineering and Technology. The faculty development program at GCET, titled Recent Innovation and Novel Concepts for Sustainable Development, is aimed at showcasing some of the research areas that are rooted towards a sustainable future. Today, sustainable growth and development is a global mission. Therefore, teachers should be aware of the recent trends in this field so they can communicate these visionary ideas to their students who will finally be the torchbearers to a sustainable world. With a pledge that we will spread the light of this holistic thought of sustainable development, where the needs of the present are met without compromising the ability of the future generations to meet their own needs. Let us proceed towards the lamp lighting ceremony of this event and seek the blessings of Goddess Saraswati to achieve clarity of thought, creativity, and intellectual growth. I would like to call upon our honorable chief guest, Civil Engineering, HOD Applied Sciences, Dean Student Welfare. Please come on for the lamp lighting ceremony and then take the dais. Saraswati
Ladies and gentlemen, good morning to all. A warm welcome to our chief guest, Dr. R.K. Khandar, Director Sir in absentia, Deans, HODs, faculty members, and dear students of the Galgotia College of Engineering and Technology. I am greatly thankful to the Honorable Management and Director Sir for supporting and enlightening us always. I am also thankful to AKTU for sponsoring this FDP. It is the great honor and dignity that I stand before you today for the inaugural session of 1 week faculty development program on recent innovations and novel concepts for sustainable development. We embark a journey of exploratory and discovery. This program symbolizes our commitment to foster the knowledge, innovation, and sustainable practice in the field of science, engineering, and technology. Galgotia College of Engineering and Technology have always stood at the forefront of the academic excellence and holistic development. Our aim is not just to educate, but to inspire and empower the next generation of engineers and technologists who will shape the future of our nation and the world. The theme of this faculty development program, Recent Innovation and Novel Concepts for Sustainable Development, is particularly pertinent in the today global context. It challenges us to think beyond the conventional boundaries, to innovate with purpose, and to create the solutions that are not only technological advanced, but also environmentally and socially sustainable. During this week-long program, esteemed speakers and experts from the various domains will share their insights, experience, and research findings. It is an opportunity for all of us to engage in a meaningful discussion
to exchange ideas and to collaborate on the projects that makes a real difference in our society. I urge all participants to approach this program with the enthusiasm and with an open mind. I extended my heartfelt gratitude to everyone who have contributed in organizing this FDP. Your dedication and hard work are truly commendable, and I am confident that this inaugural session will mark the beginning of the transformative journey towards the excellence in education and research at Galgodias College of Engineering and Technology. Thank you once again for your presence and participation. Let's make this week a memorable and enriching experience for us. Thank you, sir, for bringing the importance of interdisciplinary research and motivating the teachers to bring these subjects into their classrooms. This 5-day faculty development program will give us an opportunity of learning from the experiences and knowledge of experts in their respective fields. I feel extremely privileged to introduce to you all a Pandit, the Chancellor of SDGI Global University, Ghaziabad, our Honorable Chief Guest, Professor Dr. R.K. Khanna. Thank you so much. I'm really pleased to be back here after a long time. I think I must tell you, and I must admit this, that Galgodias is a group of institutions very close to my heart. And please convey my regards to Senior Galgodia, Sunil ji, and Junior Galgodia, Dhruv ji. Okay? उनको बोलिएगा कि उन्होंने बहुत अच्छा इकोसिस्टम डेवलप किया है, एस्टेब्लिश किया है, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपके इस प्रोग्राम को इनॉग्रेशन के लिए मैं आया हूँ। उनको मेरा प्रणाम बोलिएगा और मेरी ओर से बधाई भी दीजिएगा कि इतने अच्छे लोग आप इस संस्था को चला रहे हैं। देखिए, मैं धन्यवाद देता हूँ सबसे पहले प्रोफेसर श्रीवास्तव जी को, विपिन श्रीवास्तव जी को, जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि इस कार्यक्रम को इनॉग्रेट करने के लिए आप आइए। धन्यवाद देता हूँ मैं प्रोफेसर त्रिपाठी जी को, प्रोफेसर गर्ग को और आपके डायरेक्टर सर को कि जिन्होंने मुझे फैसिलिटेट किया और मैं आपके इस कार्यक्रम में आया। धन्यवाद देता हूँ मैडम मलिक को, इन्होंने बहुत अच्छे से मुझे बर्फी खिलाई, पूरा ध्यान रखा। ओके, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके इंस्टीट्यूट में आके। थैंक यू प्रोफेसर गर्ग, प्रोफेसर त्रिपाठी एंड प्रोफेसर श्रीवास्तव एंड प्रोफेसर मलिक and all the other professors, deans and faculty. I assume that all of you are from Galgodias or from outside also. Are there faculty also from outside Galgodia? They are all from Galgodias? Okay. The one thing that impresses me most is that this program is being organized by 2 departments, multidisciplinary departments. Okay, all the applied sciences department and the civil engineering. This is a very good development, and this in fact is the most innovative way of doing things proper in academic institutions. अब मेरी दुविधा ये है कि मैंने इस प्रोग्राम के लिए एक बहुत अच्छी सी प्रेजेंटेशन बनाई थी, लेकिन मॉर्निंग में श्रीवास्तव जी ने मेरे को कार्यक्रम भेजा तो उसमें 20 मिनट का, आधे घंटे का कार्यक्रम है इनॉग्रेशन का। तो यदि आपके पास समय है 22 तक और यदि आपका ये हॉल फुल है तो आपके पूरे कार्यक्रम का एक कैप्सूल मैंने प्रेजेंटेशन में बनाया है। देखिए, सस्टेनेबिलिटी एक बात होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ सस्टेनेबिलिटी। वो और ऊपर का लेवल है सेल्फ सस्टेनेबिलिटी। और मैंने जीवन में ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में और ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है जिनको सेल्फ सस्टेनेबल किया है। राइट? सस्टेनेबिलिटी क्या होती है? सस्टेनेबिलिटी ये होती है कि आज जो हम काम कर रहे हैं वो करते रहें, कोई दुविधा ना आए, भविष्य में भी इंश्योर करते हैं कि चलता रहे। लेकिन सेल्फ सस्टेनेबिलिटी ये है कि कभी भी निरंतर किसी भी समय कोई दुविधा हो, कोई संकट हो, कोई कष्ट हो, प्रोग्राम चलता रहेगा निरंतर बिना किसी की डिपेंडेंस के। सस्टेनेबिलिटी टाइम डिपेंडेंट है, समय पे निर्धारित है। ओके, आज सस्टेनेबल हैं, कल रहेंगे नहीं रहेंगे।
जैसे मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि आप मान लीजिए यू आर ए रेसलर, ओके। एक रेसलर क्या होता है, दंड लगाता है, बैठक लगाता है, ओके, एक्सरसाइज करता है। सपोज यू आर ए लॉन टेनिस प्लेयर, आप अच्छा खेलते हो, कितना सस्टेन करते हो, एक टाइम पीरियड है तब तक आप चैंपियनशिप जीतते हो। अब कल आपने देखा होगा विंबलडन चैंपियनशिप, ओके, नोवाक जोकोविच, ओके, कितना सुंदर, कितना अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया और यंग लड़के ने उनको हरा दिया। आप समझ रहे हैं? तो ये समय पर नहीं आधारित है, सस्टेनेबिलिटी समय पे आधारित है, लेकिन सेल्फ सस्टेनेबिलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। कभी भी कोई भी समय हो, ऑलवेज इट विल हैपन। अब जैसे हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये भी सस्टेनेबल हैं, इनको सेल्फ सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए, ये हम टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आप देखिए गलगोटियाज ने पूरी फैमिली ने इतना अच्छा इंस्टीट्यूट, इतना अच्छा इकोसिस्टम बना दिया। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको सेल्फ सस्टेन करें, राइट? सस्टेन नहीं, इसको सेल्फ सस्टेन करें। तो देश के, राष्ट्र के लेवल पे आप देखिए कि राष्ट्र ऑलरेडी है, हमारे पूर्वजों ने बनाया, हम इसको ऐसा बनाएं कि ये सेल्फ सस्टेन हो जाए। अब दो टर्म है आजकल सबसे बड़ी, पहली क्या है, विकसित भारत, और दूसरी टर्म है आत्मनिर्भर भारत। जो विकसित भारत है वो सस्टेनेबिलिटी से कनेक्टेड है। विकसित भारत का अर्थ यह है कि हम विकास करें, हम आगे बढ़ें, हम जो हमारा एवरी व्यक्ति, आज कलयुग में क्या है, प्रत्येक व्यक्ति इस बात पे इंटरेस्टेड है कि आपको धन कितना मिल रहा है, आपका पैकेज कितना है, कितने आपके मकान हैं, कितनी आपकी गाड़ियां हैं, ये एक पैमाना है। तो विकसित होने का अर्थ ये है कि आप सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन आत्मनिर्भर का अर्थ है आप सेल्फ सस्टेनेबल हो रहे हो। कोई भी समय होगा, भारत यदि आत्मनिर्भर है तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा, और जब आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हो, आप सेल्फ सस्टेनेबल होते हो, स्वयं पर डिपेंडेंट होते हो। जब स्वयं पर डिपेंडेंट होते हो तो किसी की चिंता है ही। अब आप देखिए सब लोग क्या, किस पैमाने से देखते हैं, पूरे देश आपस में किस पैमाने पे देखते हैं, इकोनॉमिक पैरामीटर को विकास का पैरामीटर माना जाता है। तो उसमें कैसे देखते हैं, जीडीपी के बेस पे बोलते हैं कि साहब आपकी जीडीपी कितनी है, राइट? विश्व में पूरा लिस्ट बनती है कौन टॉप जीडीपी का है, तो इंडिया जैसे आजकल हम बोलते हैं कि 5वीं, ओके, 5वां हमारा स्थान है जीडीपी के बेस पे, इकोनॉमिक पैरामीटर्स में हम लोग 5वें नंबर पे हैं। और अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि साहब हम 2030 तक तीसरे स्थान पे पहुंच जाएंगे, राइट? अल्टीमेट गोल है हमारा पहले स्थान पे पहुंचना। अब आप थोड़ा सोचो, आज आप नेट पे जाके देखना, आप सब लोग अध्यापक गण हो, आपको ये सब जानकारियां होनी चाहिए जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और मैंने बताया कि यदि आपके पास 1 घंटे का समय है और यदि आप चाहते हैं तो मैं इस पीरियड में निकाल के एक दिन में आ जाऊंगा और आपको पूरा वो लेक्चर, पूरा कैप्सूल दे दूंगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल इंडस्ट्री, सस्टेनेबल एजुकेशन, एवरीथिंग सस्टेनेबल, उसको सेल्फ सस्टेनेबल कैसे बनाएं। तो मोदी जी ने कहा कि साहब हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे बाई 2030, राइट? 2030 हम विकसित हो जाएंगे और आत्मनिर्भर की ओर हमें बढ़ना चाहिए। मैं बात कर रहा था कि जीडीपी के बेस पे हम 5वें स्थान पे। अब आप एक छोटी सी बात सोचिए, जस्ट इमेजिन फॉर अ मिनट कि आज से 300 वर्ष पूर्व हमारा भारत जो है वो कहाँ था। आज नेट पे जाना, आप चेक करना कि व्हाट वाज आवर स्टेटस जीडीपी बेसिस, इंडिया कहाँ था। इंडिया वाज नंबर 1 जस्ट 300 years ago। आप नेट पे जाना, आप देखना कि व्हाट वाज द जीडीपी ऑफ इंडिया। वी वर नंबर 1 and I think about 30% of the world's GDP was by India, 30 or 35%. China was nowhere. China was I think number 2. US was nowhere. Okay? और जैसे जैसे समय हुआ, एक समय ऐसा आया कि हम कहीं भी नहीं थे लिस्ट, राइट? और जब मोदी जी आए तो I think we were at 7 or 8 position and now we have I think we were 10th position and in last 10 years we have come over to 5th position and next 5 years we would be at number 3rd. I am 101% sure we will be number 3rd by 2030. ये होगी बात इकोनॉमी की। जस्ट सोचो कि 1800 में हम कैसे नंबर 1 थे, 1800 में क्या था
जो हमें नंबर 1 बनाता था। हमारे पूर्वज क्या करते थे? मैं सब लोगों को बोलता हूँ कि धन और निर्धन ये 2 बातें होती हैं, ठीक है। हम लोग आजकल क्या बोलते हैं, ये गरीब देश है। गरीब शब्द ही नहीं है हमारी संस्कृति में। हमारी संस्कृति में धन और निर्धन। निर्धन कौन है? जिसके पास धन की कमी है। लेकिन धनी कौन है? मेरे विचार से धनी वो है जो निर्धन है, क्योंकि उसको धन की चिंता ही नहीं है। चिंता किसको होती है? यदि आपके पास एक गाड़ी आ गई तो आप सोचते हो 2 आ जाए, एक घर आ गया तो आप सोचते हो 2 घर आ जाए, 2 आ गए तो आप सोचते हो बड़ा इंडिपेंडेंट विला आ जाए। आप यही सोचते हो ना। धन की कोई सीमा नहीं है, और जितना आप धन अर्जित करोगे उतना ही अपने आप को निर्धन पाओगे। आप कंपेयर किससे करोगे? आप distinguished guests, announcer, esteemed colleagues, and dear participants. A very happy morning and a warm welcome to each one of you. It is my distinct honor and pleasure to welcome you all in this 1-week faculty development program on recent innovations and novel concepts for sustainable development. I extend my heartfelt gratitude to AKTU for bringing together such a significant gathering of minds dedicated to fostering sustainable growth and development. Sustainability, as we all recognize, is not merely an option but an imperative. The challenges posed by climate change, resource depletion, and environmental degradation demand innovative and novel approaches. As educators, researchers, and thought leaders, we bear the responsibility to not only understand these challenges but also to lead the way in crafting solutions that ensure a sustainable future for generations to come. This program is a testament to our commitment to this cause. Over the next week, we will delve into the latest innovations and concepts that hold promise for sustainable development. We will explore a broad spectrum of topics from renewable energy technologies and sustainable agricultural practices to green building designs and waste management systems. Each session is designed to provide us with the knowledge and tools necessary to integrate these advancements into our teaching, research, and practice. Our esteemed speakers and facilitators, who are experts in their respective fields, will guide us through these complex subjects. Their insights and experiences will undoubtedly inspire us to think critically and creatively about the ways we can contribute to sustainability in our professional roles. As we embark on this journey, I encourage each one of you to engage actively in the discussions, share your perspectives, and collaborate with your peers. The exchange of ideas and knowledge will enrich our understanding and pave the way for interdisciplinary approaches to sustainable development. Moreover, let us not forget the broader impact of our endeavors. The knowledge and skills we acquire this week will ripple outwards, influencing our students, our institutions, and our communities. By embedding sustainability into our educational frameworks and research agendas, we can drive meaningful change and create a positive legacy. In conclusion, I would like to thank all the participants for their enthusiasm and commitment to this vital cause. I am confident that this program will be a transformative experience for all of us, equipping us with expertise to foster a more sustainable world. Once again, welcome to the program. Let us embark on this journey of learning and innovation with open minds and a shared vision for a sustainable future. I stop my words with one beautiful quote on sustainable development, and it goes like this: sustainability is no longer doing less harm. Sustainability is no longer doing less harm, rather it's doing more good. Thank you so much. राष्ट्र इस समय किस पोजीशन में है? यही समय है, सही समय है। और वो जो व्यक्ति जो 24 घंटे लगा हुआ है आपके देश को बनाने में, पुनर्निर्माण में, मोदी जी, उनको समझ ही नहीं पा रहे हैं। जब वो गवर्नमेंट में आए थे, लीव पॉलिटिक्स डिसाइड, वी शुड, वी आर ऑल साइंटिस्ट, वी आर ऑल इंजीनियर्स, we are all technical people, right?
वी आर ऑल साइंटिस्ट, क्या था। और युवाओं के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, जब वो आए थे पावर में, तो जो गवर्नमेंट गई थी उसका क्या टारगेट था। उस समय देश में 4 गीगावाट सोलर पावर थी, 4 गीगावाट, 4 भी नहीं थी उस समय। और टारगेट क्या था हमारा, वो उस समय 2012 में सोच रहे थे कि हम इसको टारगेट को करेंगे 20 और कर नहीं पा रहे थे, राइट, 10 भी नहीं कर पा रहे थे। मोदी जी आए 2014 में, उन्होंने पहला काम ये किया कि हमारा टारगेट होगा 100 गीगावाट। कहां 4 और कहां 100। सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स थे, वो बोलते थे ये फेकू है, तो अभी भी बोलते हैं फेकू है, यू नो, ऐसे ही बोलता है, होगा नहीं। कैन यू इमेजिन, वी आर ऑलरेडी क्लोज टू 100 और अब टारगेट कर दिया है 300 या 400 या पता नहीं 500, राइट। आप ये देखो कि किस प्रकार से देश में सब हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस प्रकार से मेट्रोज बन रही है। जब हम यूरोप में जाते थे, अमेरिका कनाडा जाते थे, तो देखते थे हर सिटी में, हर में तो नहीं, बड़े बड़े सिटीज में मेट्रोज थी, हमारे यहाँ नहीं थी। और कितनी स्लो स्पीड से मेट्रोज बनी बिफोर 2014 और कितनी फास्ट स्पीड से आज बन रही है। आप नॉर्थ ईस्ट में जाके देखो, ये सब हो रहा है नेट जीरो अचीव करने के लिए। हमारा क्या योगदान होना चाहिए, हमारा योगदान ये होना चाहिए कि स्वस्थ रहें। जो बच्चे हमें मिले इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए आए, उनको शीघ्र बाहर करें, उनको ऐसा ट्रेन करें कि जल्दी निकलो, पासपोर्ट बनवाओ, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लो, भागो यहाँ से, डोंट वेस्ट योर टाइम इन इंडिया, बिकॉज यहाँ तो इतना अच्छा। दूसरा क्या है, देखिए, जिसके पास जो अधिक होता है वही एक्सपोर्ट करता है, राइट। वी आर नंबर 1 इन मिल्क प्रोडक्शन, कैन वी एक्सपोर्ट मिल्क, because our per capita milk consumption is hardly 300 ml per capita, okay. Though we are the largest producer of milk, we cannot export it. We are the largest producer of, say, rice, wheat, maybe many of the fruits, but we cannot export them because we are already 140 crore. हम क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम 140 करोड़ भारतीयों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये कहना रहता है हमेशा, मैं तो ये सोच रहा हूँ किसी दिन भी मिनिस्ट्री बन जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ मैन पावर, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फॉर एक्सपोर्टिंग मैन पावर। क्यों मैं कह रहा हूँ ये, आप देखिए, मैंने अभी 30 स्लेव्स का बताया, इटली में 30 स्लेव्स रिलीज हुए, पुलिस ने छोड़ा 30 स्लेव, इंडियन स्लेव। अभी कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर के बच्चे वहां चले गए थे, कहाँ, एशिया में, और वहां उनको ले जाया गया थाईलैंड कि आपको अच्छा जॉब देंगे, फिर उनको डाल दिया कहाँ, म्यांमार में। म्यांमार इज अ कंट्री विच इज इवन पुअर देन इंडिया, और वहां उनसे काम करवा रहे हैं पाम प्लांटेशन में, और ढेला नहीं दे रहे, उनके पासपोर्ट वगैरह ले लिए। तो इस प्रकार की जो स्थिति है उसको ठीक करने के लिए बेस्ट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एजेंसी हो। अभी देखिए, मोदी जी जब रशिया गए तब उन्होंने कहा कि जितने भी लोग हमारे आपकी मिलिट्री में काम कर रहे हैं बिना हमारे से पूछे, उनको लौटाओ, है ना। यदि गवर्नमेंट लेवल पे भारतीयों का इमिग्रेशन, देयर शुड बी अ मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन इन माय ओपिनियन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील करे, आपको कितने टीचर चाहिए, देखिए टीचर्स की रिक्वायरमेंट पूरे विश्व में, टेक्नोलॉजिस्ट की है, इंजीनियर्स की है, हम जल्दी से जल्दी उनको करें। हम क्या कर दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने और उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हमारा फोकस ये रहता है कि कैसे उनको फेल करें, ओके। आप देखिए, अब नीट का देख लीजिए किस प्रकार से हो रहा है। आप मुझे बताओ कौन चीटिंग नहीं करता, हम भी जब पढ़ते थे थोड़ी बहुत चीटिंग तो करते थे, है ना, हर एक ने थोड़ी बहुत तो की होगी, 101%, कहीं ना कहीं देखा होगा, दैट इज ओके, वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन जिस प्रकार से नीट में हुआ, और हम अभी भी सजग नहीं हो रहे। जब एजुकेशन पॉलिसी आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसका एक फंडामेंटल वो था, गोल था, और क्या फंडामेंटल गोल था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद हो जाएंगे। अब देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट 70,000 कोचिंग इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड है, और टोटल इंस्टीट्यूट मिला के 60,000 है। आप मुझे बता दीजिए, किसी का बच्चा स्कूल में पढ़ता हो और उसने ट्यूशन नहीं लगा रखी हो, तो जो स्टेटस सिंबल है, आपस में डिस्कस करते हैं पेरेंट्स, आपने आपका ट्यूशन कौन है, आपका ट्यूटर, आपने कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। ये धिक्कार है हम सब प्रोफेसर्स के लिए कि हमारे स्टूडेंट, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट, पहले इंजीनियरिंग में नहीं करते थे कोचिंग, अब तो इंजीनियरिंग के भी खूब कोचिंग करते हैं।
प्रत्येक बच्चा कोचिंग कर रहा है। तो हमको ये ध्यान देना है कि बच्चों को जल्दी से जल्दी चर्न आउट करें, डिग्री देके भेजें, मेक देम एफिशिएंट एंड मेक देम कैपेबल सो दैट दे सॉल्व द प्रॉब्लम रादर देन दे बिकम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। कि साहब इनको जॉब नहीं मिल रहा, जॉब बहुत है। वर्ल्ड का मैप देखो, जब एक चाइनीज प्रोफेसर, व्हेन आई वेंट सेवरल टाइम्स टू चाइना, मैंने इंटरेक्ट किया हुआ प्रोफेसर से, मैंने पूछा आप कैसे पढ़ाते हो, मैनेजमेंट के प्रोफेसर, कहते हैं वी डोंट टीच देम ओनली चाइना, वी टेल देम योर मार्केट इज वेनेजुएला, योर मार्केट इज होंडुरास, योर मार्केट इज ब्राजील, योर मार्केट इज इंडिया। सो वी टेक, हम बताते तो है वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन जब पढ़ाते हैं तो ये कॉन्सेप्ट नहीं आता। हमें भी बच्चों को ये पढ़ाना चाहिए, बेटा डोंट लुक फॉर ये बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, रिलायंस ना, आप बड़ी बड़ी कंपनी, पूरे पेट्रोनास, आप पूरा देखो वर्ल्ड स्केल पे, वहां मुझे जाना है, वहां मुझे सीईओ बनना है। सेलेक्टेड कुछ बन जाते हैं, लेकिन हमें ये लार्ज स्केल पे करना है। गवर्नमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन करके फोकस्ड वे में बच्चों को यहाँ से भेजना है, और ये नहीं कि बच्चे यहाँ से चले जाएं पढ़ लिख के और वहीं बस जाए ना। ऐसे एग्रीमेंट हो कि ये फैमिली के साथ जाएंगे, इतने साल वहां रहेंगे, वापस लौटेंगे, तो बढ़िया से रहेगा। डोंट यू थिंक दैट दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग? पेरेंट्स का ध्यान रखेंगे। अभी क्या ट्रेंड हो रहा है, बच्चे जाते हैं, पेरेंट्स को यार भूल जाते हैं, पेरेंट्स यार होते रहते हैं। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो सस्टेनेबिलिटी, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, विकसित, आत्मनिर्भर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल इंडस्ट्री। आप देखिए सिविल इंजीनियरिंग के हो आप। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, 83 की बात बता रहा हूँ, where 82 I became assistant professor there। हम लोग काम करते थे फ्लाई ऐश पे, ओके, और हम ट्राई करते थे कि फ्लाई ऐश वाज अ न्यू साइंस। आज फ्लाई ऐश मिलती नहीं, आप समझ रहे हो? हाउ डू यू मेक वेस्ट टू वेल्थ? दिस योर कॉन्फ्रेंस हैज अ थीम, वेस्ट टू वेल्थ। If I have a big presentation on this, if you have, I can come down। अगर आपके शेड्यूल में है तो मैं कुछ आपको वो नहीं कर रहा, तो आई थिंक वी विल डू सम अदर टाइम। मैंने ऑलरेडी बहुत अधिक समय ले लिया। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई विल बी ग्लैड टू आंसर योर क्वेश्चंस, बिकॉज क्या होता है कि डिस्कशन इज बेटर देन वन वे डिलीवरी। जब तक आप सुनने वाले को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, एनकरेज नहीं करेंगे क्वेश्चन पूछने के लिए, यू आर नॉट अ गुड टीचर। ओके, तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फाइन, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा मुझे आपके प्रांगण में आके। Everybody is saying we have to go for zero carbon. Now we are in a developing stage. We are not developing. So how to do both the things? Going to be a developed nation and then. देखिए क्या होता है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि भाई डेवलप तभी हो सकता है ना। मैंने आपको बताई बात, आज से ही आप निर्णय ले लो। जैसे मुझे बताओ, आपके इंस्टीट्यूट के विद इन 1 to 2 किलोमीटर कौन कौन रहते हैं? कितने लोग हैं जिनका घर यहाँ से 2 किलोमीटर पे है? हाथ उठाइए। 2-3 किलोमीटर में। आप मुझे बताओ, महीने में कितनी बार आप पैदल आते हो और पैदल जाते हो? हैं जी? मेरा ऑफिस यहाँ से 30 किलोमीटर था, मेरे घर से 32 किलोमीटर, और 3 महीने में कम से कम एक बार मैं पैदल आ जाता था वहां से। अच्छा, जिनका घर 5 किलोमीटर के अंदर है, हाथ उठाइए। आप बताओ कितनी बार आप साइकिल से आते हो? साइकिल का कॉन्सेप्ट है ना। मैं 1993 की बात बता रहा हूँ। इंडिया ग्लाइकोल्स में आई वॉज द चीफ ऑफ द बिजनेस यूनिट, ठीक है। मैं, मिसेस खांडल, दोनों हमारे बच्चे, हम लोग काशीपुर गए, हमने साइकिल खरीदी, ओके। और साइकिल से काशीपुर से हम प्लांट आए, और पूरे प्लांट में हम लोग साइकिल से रहते थे। चारों तरफ जाना, ऑफिस जाना, मैं साइकिल से जाता था। ऑफिस साइड पे ही था, हम लोग वही साइड पे ही रहते थे। माय ऑफिस वाज मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी से कंपेयर करने लोगे तो आप बहुत निर्धन हो, बिकॉज आपका पैमाना वो है। तो आज से 300 वर्ष पहले हमारे जो पूर्वज थे वो धन के पीछे नहीं भागते थे, और पूरा गीता का ज्ञान जो हमारे योग पुरुष, योगीश,
हमारे श्री कृष्ण ने दिया उसमें क्या था? उसमें यही बताया कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचित्, राइट? तो फोकस कर्म पे था। 1800 की बात मैं बता रहा हूँ, 1700 1800 हमारे पूर्वज कर्म पे फोकस करते थे। कैसे आत्मनिर्भर थे? स्वावलंबी थे, किसी पे निर्भर नहीं करते थे। कैसे वो थे? स्वस्थ रहते थे। आप इमेजिन करो 140 करोड़ हैं हम, ओके? अगर 700 करोड़ पूरी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, तो 140 करोड़ कम नहीं होता, 20 से 22% होता है, राइट? अब इमेजिन करो अगर हम 140 करोड़ लोग ये निर्णय ले लें आज कि हम में से कोई भी रोगी नहीं होगा, हम सब स्वस्थ रहेंगे, ओके? और एक सिस्टम ऐसा बनाए कि यदि बच्चे को कोई रोग हुआ तो उसको दंड मिलेगा। देखिए हम लोग सिस्टम में क्या रखते हैं, सिक लीव होती है भाई, जब हम वी आर नॉट फीलिंग वेल तो हम सिक लीव होती है ऑर्गेनाइजेशन में। यदि कोई व्यक्ति, अभी देखिए ऐसे ऐसे चीफ मिनिस्टर है, शुगर की कमी हो गई, जेल में है, ओके, इनको शुगर की कमी हो गई, ये हो गई, अरे धिक्कार है आप पे, अगर आप रोगी हो तो यू आर नॉट, सो यू शुड बी पनिश्ड। कोई भी रोगी व्यक्ति बर्डन है सोसाइटी में। आप मानते हो मेरी बात की नहीं मानते? हम 140 करोड़ भारतीय ये डिसाइड कर लें कि कोई भी मेडिसिन नहीं लेगा 1 साल के लिए। इमेजिन करो, you know what will happen? India is the largest generic producer of pharmaceuticals in the world. तो वो सारी मेडिसिन हम तो प्रयोग में नहीं लाएंगे, हम उनको एक्सपोर्ट करेंगे, डिस्काउंट पे एक्सपोर्ट करेंगे, जो हमारे पूर्वज करते थे 1800। वो आयुर्वेदा के सेंटर्स थे, ऋषि मुनि और पूरे यहाँ पे आश्रम थे, लोग आश्रमों में आते थे, शिक्षा पाते थे, स्वास्थ्य लाभ पाते थे। और हमारे पूर्वज क्या करते थे? मस्त रहते थे, उन्हें धन की आवश्यकता ही नहीं। जिनको धन की आवश्यकता नहीं उनके पास धन ही धन आता है, और जिनको धन की आवश्यकता है उनके पास धन कभी नहीं आता। आप समझ रहे हैं? तो 140 करोड़ भारतीय, यदि हम बच्चों को ये सिखा दें कि बेटा आपको अब कभी भी रोगी नहीं, बेटा बैठ जाओ आप लोग, है ना? देखो महिलाएं खड़ी हों और पुरुष बैठे तो वो समाज कभी उन्नति नहीं करता, ओके? तो यदि हम ये डिसाइड कर ले 140 करोड़ भारतीय कि हम 1 वर्ष के लिए कि हम में से कोई रोगी नहीं होगा, उसके लिए क्या होगा? हम कभी भी स्कूटर, मोटरसाइकिल और कार लेके नहीं दौड़ेंगे, हम पैदल जाएंगे, ओके? पैदल जाएंगे तो वी आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पेट्रोल इन द वर्ल्ड, you know this. We are the largest importer of petroleum products, the fuel, the petrol, diesel, etc. We are the largest importer of crude. रिफाइन करते हैं हम लोग, एक्सपोर्ट भी करते हैं पेट्रोल, बिकॉज रिफाइन अभी हम रिफाइन करते हैं। तो आज से 20 वर्ष पहले हम रिफाइनिंग नहीं थी, थैंक्स टू रिलायंस वी हैव नाउ रिफाइनरीज सो दैट वी एक्सपोर्ट। वी आर द लार्जेस्ट importer of petroleum fuel. At the same time, we are also the largest importer of vegetable oil. अब आप बताइए, यदि आप खाने का तेल भी इंपोर्ट कर रहे हो वर्ल्ड में सबसे नंबर 1, हमारे कारण इंडोनेशिया और मलेशिया संपन्न है, क्योंकि उनका सारा पाम ऑयल हम खाते। अब आप बताइए, यदि हम ये डिसाइड कर लेंगे हम रोगी नहीं होंगे तो स्वयं चलेंगे, गाय भैंस पालेंगे, देसी घी खाएंगे, समझ रहे हैं? अभी देखिए एडवर्टीजमेंट आता है देसी घी से अगेंस्ट तेल का एडवर्टीजमेंट आता है, ओके? क्योंकि गांव में थे तो गांव में एक कहावत क्या बोलते थे बड़े बूढ़े कि खाए तो घी से नहीं तो जाए जी से, ओके? देसी घी खाते थे, खाएंगे तो घी से नहीं तो जाएंगे जी से। तेल नहीं खाते थे, अभी क्या सब लोग तेल खाते हैं, वेराइटी ऑफ ऑयल्स, सब लोग ऑयल खाते। तो यदि हम निर्णय ले लें कि हम स्वस्थ रहेंगे तो सब लोग अपने चलेंगे। अब कौन कितना चलता है? चलता नहीं। अब कौन चलता है? केवल वो चलता है कि वो फोन में लिखा हुआ है, हेल्थ का डाला हुआ है, कितने स्टेप्स चले, कितना कैलोरी बर्न हुआ, ये देखते हैं। भले ही से आसपास खरपतवार खड़ी है लेकिन हम कैलोरी बर्न कर रहे हैं रोड पे। अरे भाई फावड़ा लाओ और उसको खोद दो, कैलोरी अपने आप बर्न हो जाएगी। घास खड़ी हुई है पार्क में, कंप्लेंट लिख रहे हैं कॉर्पोरेशन को कि यहाँ बड़ी घास खड़ी है। अरे भाई कंप्लेंट तो लिख रहे हो यार, फावड़ा लाओ और लग जाओ यार सब लोग मॉर्निंग में आके।
आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, इससे अच्छा आप उसकी पार्क की सफाई कर दो। दिस इज व्हाट जापानीज डू, दिस इज व्हाट जापानीज। ज्यादा समय हो रहा है नहीं, अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा हो रहा है, क्योंकि आपने समय 15-20 मिनट रखा था, मैं थोड़ा ज्यादा बोल दे रहा हूँ, ओके। बट एनीवेज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे होना है, ये हमारे ऊपर है। दूसरी बात बताता हूँ, क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वर्ल्ड में। देखिए जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कितने भयानक हैं और भारतीयों की कितनी आवश्यकता है। सबसे बड़ा डेवलपमेंट देखिए, कल ही डोनाल्ड ट्रंप जी के ऊपर अटैक हुआ। छोटी बात नहीं है। क्यों छोटी बात नहीं है मैं बताता हूँ, इसका संदर्भ बताता हूँ। नेट पे जाइए, डोनाल्ड ट्रंप जी का भाषण सुनिए। 2 दिन पहले उन्होंने एक बहुत धांसू भाषण दिया और उस भाषण में क्या बोला, उसने बोला कि जिस दिन मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा सारे जिहादियों को बाहर कर दूंगा अमेरिका से। 24 घंटे पहले उन्होंने भाषण दिया, भाषण वायरल है, आप पढ़िएगा उसको। उसमें लिखा कि उन सारे जिहादियों को मैं अमेरिका से बाहर कर दूंगा। और दूसरी बात उन्होंने बोली कि जितने जिहादियों के समर्थक हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, अभी देखिए पिछले 4 महीने में, 3-4 महीने में सारी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट हुए। और कौन प्रोटेस्ट कर रहे थे? इंडियन ज्यादा थे उसमें। आप देखिए, जो अमेरिका गए हैं पढ़ने के लिए, जो अमेरिका गए हैं वीजा लेके टू एक्वायर मोर नॉलेज, और वो वहां क्या कर रहे हैं, वो इजराइल के विरोध में और पैलेस्टीन के समर्थन में वहां प्रोटेस्ट नारे लगा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बंद कर रहे हैं। तो ट्रंप जी क्या कहते हैं, पहले तो मैं जिहादियों को बाहर करूंगा, और दूसरा जो जिहादियों के समर्थन में यूनिवर्सिटी में नारे लगा रहे हैं उनका वीजा कैंसिल करके उनको डिपोर्ट करूंगा। समझ रहे हैं आप? और अगले दिन उनके ऊपर गोली चल गई। ये एक दृश्य बताया मैंने आपको। दूसरा दृश्य देखिए, यूक्रेन और रशिया का चल रहा है, आपने देखा। तीसरा पैलेस्टीन और वहां चल रहा है। चौथा जो गल्फ में तो चलता ही रहता है आपस में किसी ना किसी का, ओके, सीरिया, टर्की, ओके, सऊदी अरेबिया, ये सब पूरा चलता रहता है पूरे उसमें। अब जो बात बता रहा हूं मैं वो पते की वो ये है, इन सबको मैन पावर चाहिए। समझ रहे हैं गुरुजनों? इन सबको मैन पावर चाहिए। यूक्रेन को भी मैन पावर चाहिए, रशिया को भी मैन पावर चाहिए, पैलेस्टीन को भी चाहिए, इजराइल को सबसे अधिक चाहिए। अब किस प्रकार की मैन पावर आप भेज सकते हो यहां से? अभी देखिए कल का न्यूज था, इटली में 30 इंडियन वर्कर्स को छोड़ा उन्होंने। दे वर वर्किंग लाइक स्लेव्स, ओके। कहां काम कर रहे थे? खेतों में काम कर रहे थे इटली में। और कौन उनको लेके गया? वो भी इंडियन ही था जो यहां से लेके गया। और ये कैसे उन्होंने छोड़ा? क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी गए थे वहां G7 के समिट में, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बात करके उन्होंने उन 30 भारतीयों को छुड़वाया। वो वहां पे स्लेव, नौकर की तरह से काम कर रहे थे। आप समझिए कि धन के पीछे कैसे हम भागते हैं। और वो सारे जो वर्कर हैं, सारे जो इंडियंस हैं, वो अपने यहाँ के संपन्न परिवारों से होंगे, क्योंकि जो निर्धन परिवार है वो तो सोच भी नहीं सकता इटली जाने का, यूरोप जाने का, और वो जाने का कौन करता है? पंजाब से करते हैं मोस्टली। और पंजाब इतना धनाढ्य प्रदेश है, लेकिन वहां के लोग वहां जाना चाहते हैं। समझ रहे हो आप? तो यूक्रेन को भी इंडियन चाहिए, रशियन को भी इंडियन चाहिए, सबको इंडियन चाहिए। कारण उसका ये है कि हमारे यहाँ की जो शिक्षा है वो संस्कारी शिक्षा है। आप समझ रहे हैं? यहाँ पे हम बड़ों का आदर करते हैं, सिखाते हैं करना। करते हैं नहीं करते हैं वो दूसरी बात है, क्योंकि अभी हम लोग ऐसे उलझे हुए हैं कि भाई जाति गणना करो, ये करो, वो करो, बांटो पैसा, देखो किसके पास, एक्सरे करो और सबको बांट दो। उलझुल की बातों में हम बिजी हैं। हम इस बात पे फोकस नहीं कर रहे हैं कि हमें वहां जाना है जहां हमारे पूर्वज थे 1800 विश्व स्तर, और उसके लिए संस्कार आधारित एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम संस्कारी होंगे तो सब लोग हमको पूछेंगे कि आओ। अमेरिका भी चाहता है इंडियंस को जॉब देना, यूरोप भी चाहता है। ट्रंप ने कहा सारे जिहादियों को नहीं, किसी ने भी ये नहीं कहा कि भारतीयों को ना। यूरोप भी भारतीय आ जाए, दे आर वेरी हैप्पी। अभी देखिए, अभी ओलंपिक्स होने वाला है पेरिस में, उन्होंने वो डिशेस निकाल दी अपने मेन्यू में से जिसमें मांस खाने का था, मतलब मिनिमाइज कर दी, जीरो मांस नहीं किया, मिनिमाइज कर दिया। और भोजन में खूब सारी इंडियन डिशेस डाल दी, शाकाहारी भोजन कर दिया। ओलंपिक्स में पहली बार पेरिस में
आप देखिए, आप पढ़िए थोड़ा पढ़ाई लिखाई किया करें आप लोग। बीइंग टीचर्स यू शुड रियली डू लॉट ऑफ स्टडीज। तो मैं ये बता रहा था कि कैसे इम्पोर्टेंट है हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में युवाओं को इस प्रकार से जागरूक करना और इस प्रकार से संस्कार देना कि वो जहां जाए तो वो सीना तान के जाए और सिर ऊंचा करके जाए, क्योंकि हम भारतीय हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे। हमारे पूर्वज वो नहीं थे जो जंगलों में जानवरों का शिकार करते थे और जंगलियों की तरह से रहते थे। हमारे जो पूर्वज थे वो ऋषि मुनियों की तरह से अंतर्ध्यान होते थे, वो पूरा ज्ञान अर्जित करते थे, सबसे ज्ञानी थे हमारे पूर्वज। जब हमारे पूर्वज ऐसे थे तो हम किसी से नीचे क्यों हैं? इस प्रकार की शिक्षा देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से जुड़ी हुई एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। I don't know how many of you know about it or not. India is the number 1 country in the world where we have maximum remittances. Okay? Remittances मतलब जो हमारे भारतीय वहाँ गए हैं, वो पैसा यहाँ भेजते हैं, वो रेमिटेंस है। ओके? देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, कमाती है, जब एक्सपोर्ट करती है तो उसका पैसा मिलता है, जब यहाँ लोग आते हैं टैक्स लेते हैं उन सब से पैसा मिलता है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे लोग जो वहाँ गए हैं और वो कमाते हुए जब यहाँ भेजते हैं, वो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक फ्रैक्शन है। And do you know how much India is remitting? Indians are remitting to India in a year? $125 billion। आप इमेजिन करिए। और चाइना हमसे हर क्षेत्र में आगे है, लेकिन इस क्षेत्र में वो बहुत पीछे है हमसे। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें इस बात पे फोकस देना है कि हमारे जो लोग जा रहे हैं वो किस स्तर के लोग जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं वहां जाके। इफ यू टेक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हमारे लोग हाई लेवल पे जा रहे हैं एजुकेशनली। दे आर गोइंग एज प्रोफेसर्स, they are going as medical doctors, they are going as technologists, they are going as scientists, industrial researcher, they are going in the high echelon, high-end area of professions. But if you look at people who are going to Southeast Asia, who are going to Gulf countries, who are going to other places, they are going in menial jobs, okay, like driver, like cleaner, like operator. I think it is our duty to see that we send the students, we send the youth, which is highly, at the higher end of the package, higher end of the cadre as far as professions is concerned. अच्छा, उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए सबसे अधिक तो हमें ये करना है कि बच्चों का ध्यान फंडामेंटल्स पे केंद्रित करना है और बच्चों को अधिक से अधिक फिजिकल सिग्निफिकेंस बताना है, ना कि उनको रटवाना है। शिक्षा हमारी ऐसी हो कि सिग्निफिकेंस बताएं, जो भी हम पढ़ा रहा है एक टीचर वो ये बताए कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका क्या लाभ है, इसको कैसे मैनिफेस्ट करेंगे, कहाँ ये दिखता है जो आप पढ़ा रहे हो, कहाँ इसका उपयोग है। फिजिकल सिग्निफिकेंस हम बच्चों को पढ़ाएं। और दूसरी बात ये कि टीचर जो है अपने आप को क्लास में जाके ये ना सिद्ध करे कि वो बहुत ज्ञानी और लर्नेड है, क्योंकि वो तो नोटिस बोर्ड पे लगा है कि वो प्रोफेसर है, सबका लगा है ना नोटिस बोर्ड पे कि भाई आप प्रोफेसर हैं। तो जब आप क्लास में जा रहे हो तो आपको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है कि आप प्रोफेसर हैं। आप तो वहां ये प्रूव करो कि आप प्रोफेसर हो, लेकिन स्टूडेंट्स के लेवल पे, तब आपकी शिक्षा अच्छे से आप दे पाओगे। स्टूडेंट्स के साथ कितने प्रोफेसर हैं जो कबड्डी खेलते हो, कितने प्रोफेसर हैं जो बैडमिंटन खेलते हो अपने स्टूडेंट्स के साथ। मैं तो इतने सारे प्रोफेसर से मिलता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर से मिलता हूँ, उनको अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के नाम भी नहीं पता। आप अच्छे गुरुजन कैसे बनोगे जब आपको विद्यार्थियों के नाम ही नहीं पता? आप शीशे के सामने खड़े हो और प्रश्न पूछो, डू आई लुक लाइक ए टीचर? आप देखो हमारे पूर्वज जो गुरुजन थे, कैसे देखते ही लगता था कि आप आश्रम से आए। हम लोगों के जो टीचर्स हैं, आज के जो टीचर्स हैं, उनको देखने से क्या वो टीचर का इंप्रेशन आता है? एक मिलिट्री का व्यक्ति अगर साथ से निकल जाएगा तो आप कहोगे कि आप क्या मिलिट्री में हो? आप मिलिए, क्या आपको लोग पूछेंगे कि आप टीचर हो? नहीं कहेंगे। आपसे पूछेंगे कि आप रेलवे में हो, क्या आप बैंक में हो? क्योंकि हम टीचर की तरह से लगते ही नहीं, हमारा भाव ही नहीं है टीचर की तरह से लगना। गुरुजन लगते ही नहीं हम,
मैं ये नहीं कह रहा आप लोग तो सारे लगते हैं। मेरा कहने का अर्थ है कि प्रायः ये देखा गया है कि या तो पेट निकला रहता है, सीधे नहीं खड़े होंगे, चाल ढाल से भी नहीं होंगे, बोलने से चेहरे पे ओज नहीं होगा, है ना। देखिए हम लोग जब पैर छूते हैं बड़ों के तो बड़े क्या बोलते हैं, ओजस्वी भव, यशस्वी भव, है ना। क्या होता है ओज? ओज हमारी बॉडी में से टपकता है, ओज हमारे अंग अंग में विराजता है, और तेज कहाँ है? तेज हमारी आंखों में बसता है। ओके, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो तेज उत्पन्न होता है और ओज उत्पन्न होता है। क्या आपने ग्रहण किया? कैसे उसको पचाया? कैसे उसको उसके सारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हुए? उससे तेज और ओज बनता है। किसी दिन अवसर होगा तो ओज और तेज पे बात करेंगे। बट एक गुरुजन जो है वो ओजस्वी होता है। अच्छा, ओजस्वी में इतना सम्मोहन होता है कि यदि वो बच्चों को बोल दे कि पढ़ो तो बच्चे पढ़ेंगे, अगर वो बच्चों को बोल दे कि ऐसा करो, इस दिशा में जाओ, तो वो उस दिशा में जाएंगे। ओजस्वी होते हैं। लेकिन यदि गुरुजन ना तेजस्वी है ना ओजस्वी है तो बच्चे क्या करेंगे? क्लास बंक करेंगे। वो कहेंगे यार टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा है, इससे अच्छा तो बैठ के हम बर्गर खाते हैं, चलो कुछ खेलते हैं। आजकल तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गेम्स आ गए, तो अपना स्मार्टफोन पे गेम खेलते हैं। दे डोंट वांट टू वेस्ट देयर टाइम। उससे देश को हानि होगी, क्योंकि हमें बनना है आत्मनिर्भर भारत। हमें ये इंश्योर करना है कि हमारे रेमिटेंसेस टॉप एंड ऑफ द प्रोफेशन से आए। आप समझ रहे हो सर मेरी बात? तो हमको कैसी शिक्षा देनी है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट बात मैं बताना चाहता हूँ अबाउट सस्टेनेबिलिटी। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी COP26। आपने सुना है COP26? सुना है आप में से? किसने सुना है COP26? मैडम क्या डिसीजन था COP26 में, बताओ? जी 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 जी। या मैं COP26 की इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा निर्णय हुआ था उसमें। कोई है जो माइकल जो बताएगा जी? इंडिया वुड बी ए कार्बन न्यूट्रल, नेट जीरो। अब हमको ये देखना है कि क्या हम स्वयं नेट जीरो, हमारे पूर्वज 1800 में नेट जीरो थे, हमारा हर एक गांव नेट जीरो था। कोई भी गांव किसी गांव पे आधारित नहीं होता था। जब मकौले ने यहाँ पे आके सर्वे किया तो उसने देखा कि कोई गांव दूसरे गांव पे निर्भर ही नहीं करता। गांव और शहर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, गांव वालों को शहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो उससे पूछा गया कैसे? बोले जब ब्याह शादियां होती हैं तो सब लोग मिलके इकट्ठा दूध दे जाते हैं, सब लोग अपना चीनी दे जाते हैं, इकट्ठी करके खीर बन जाती है और आराम से सब लोग मस्ती में सारे त्योहार आपस में कर लेते हैं, गांव की गांव में ही निपट जाता है। हमने क्या किया? अभी सब लोग शहर जाओ, शहर जाओ, शहर जाओ। आप समझ रहे हैं? तो नेट जीरो के लिए आप जैसे मान लीजिए आपका ये इंस्टीट्यूट है, आप प्रोफेसर हैं सिविल के, आप लोग अप्लाइड साइंसेज के हैं, आप आज बैठ के देखना, इज योर इंस्टीट्यूट नेट जीरो? ओके, जिस ऑफिस में मैं प्रेसिडेंट R&D एंड बिजनेस डेवलपमेंट था, वो ऑफिस कभी विजिट करना आप नोएडा में, इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड। ओके, उसका कोई रूम ऐसा नहीं था जहाँ पे नेचुरल लाइट ना आती। 24 घंटे नेचुरल लाइट, आपको लाइट जलाने की आवश्यकता ही नहीं रूम में। पूरा ग्लासेस और इस प्रकार का फासाद, ऐसा आर्किटेक्चर है कि आपको कहीं भी आप बैठे हो, संध्या का समय हो, फिर भी आपको वैसी रोशनी मिलेगी जितनी बाहर मिलेगी। कैन यू इमेजिन? लाइट की आवश्यकता ही नहीं। आपका ये गलगोटिया इंस्टीट्यूट है, आप देखिए कि जितना वाटर वेस्ट करते हो आप, आर यू रिसाइकलिंग इट? आर यू जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, ZLD? ये सब बातें हैं जो 2070 तक मोदी जी ने प्रॉमिस की हैं कि भारत ZLD, भारत नेट जीरो 2070 तक हो जाएगा। और चाइना कब तक होगा? चाइना ने बोला 2050। जब उसने 2050 बोला, मोदी जी ने बोला थोड़ा कॉशियस होके 2070। ओके, हम लोग कितने मूर्ख हैं। तो मैं साइकिल से जाता था, अदरवाइज वॉक करके जाता था। दिन में 3 चक्कर लगते थे। मॉर्निंग में गए, फिर लंच के लिए आए, फिर लंच से फिर इवनिंग में लौट के आए, फिर रात में भी प्लांट विजिट होता था। तो जो प्रोफेसर गर्ग का जो प्रश्न है कि हम तो डेवलपिंग हैं, हमें तो और कार्बन चाहिए,
हम डेवलपिंग को जोड़ रहे हैं कार्बन बर्निंग से। आप जस्ट इमेजिन करो यदि हम सब लोग पैदल चलना स्टार्ट कर दें अपने कामों के लिए। हम पैदल चलते हैं फालतू में टाइम वेस्ट करने के लिए, मॉर्निंग वॉक। क्यों मॉर्निंग वॉक? आपको जो काम करना है वॉक करके करो। मॉर्निंग वॉक क्या होगी? सही है, 1 घंटा बच गया मॉर्निंग में वॉक करने का। और गाड़ी की तरफ देखो ही मत। जस्ट इमेजिन को देखो कितना बिल है आपका, फ्यूल का कितना बिल है। आप उस बिल को 0 ले आओ। क्यों नहीं ला सकते हो? ला सकते हो। तो गर्जी ये है बात, ये दिखाना पड़ेगा, सबको करके दिखाना पड़ेगा। जब मैं बताया आपको 93 में जब मैं बाइसिकल आया सब लोग हंसते थे ये जेल मैनेजर बाइसिकल है। अभी जब मैं दोबारा ज्वाइन किया कंपनी 2015 में, सब लोग बोलते थे सर आप स्टार्ट करके गए थे। सब लोग बाइसिकल से आते हैं प्लांट में, ऑलमोस्ट एवरीबडी, hundreds of them, they all move on bicycle। तो ये तो हमको स्टार्ट करना होगा। ओके, अभी देखिए सबसे बड़ी बात है घरों में टॉयलेट्स हैं, राइट? सबके वेस्टर्न कोमोड हो गए ना? पहले इंडियन टॉयलेट होते थे, ओके, मलासन में बैठ के मल के आते थे सब लोग, है ना? अब सब लोग हो गए जैसे कुर्सी बैठते, कुर्सी में बैठ के जैसे मीटिंग कर रहे हैं, पेपर लेके जाते हैं, फोन लेके जाते हैं। ओके, तो क्या होता है? सबके घुटने रिप्लेस हो रहे हैं, सब लोगों को डायबिटीज हो रही है। आप इमेजिन करो गर्ग जी, यदि हम ये निर्णय ले लें कि हम स्वस्थ रहेंगे, समझ रहे हैं, तो कितना पैसा हम तो डेवलप 1 दिन में हो जाए। कितने पैसे आप ऐसे ही अननेसेसरी वेस्ट कर रहे हो जो आप बचाते हो। देखिए हर एक के बाथरूम में लाइट लगी हुई है ना? क्यों भाई, लाइट की क्या आवश्यकता है बाथरूम में? आप बताइए। हैं? विंडोज हैं, पर्दा लगा देंगे फिर लाइट जलाएंगे। क्यों सर? आई कैन इमेजिन कि भाई बहुत धूप पड़ रही है, देन इट इज ओके, तो भाई खिड़की के पास में पेड़ लगा दो। आप समझ, कितने लोग हैं जो पेड़ लगाते हैं? आप बताइए त्यागी मैडम, आपने कितने पेड़ लगाए? एक भी नहीं लगाया होगा। नहीं लगाया ना? पालक बोलते, पालक धनिया जैसे, तो हम क्या डेवलप? हमारे पूर्वज रुद्राक्ष, कल्पवृक्ष, देखिए कहाँ हमारे पूर्वज से रुद्राक्ष, कल्पवृक्ष, ओके, कपूर, ये सब बोते थे वो। और हम क्या कर रहे हैं? पालक धनिया ये करते हैं। अभी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है सर, ऑर्गेनिक फार्मिंग चल रहा है। देखिए क्या है, अभी क्या कर रहे हैं, मैं नेगेटिव में नहीं बोल रहा हूँ, कर रहे हैं फाइन, बट अभी क्या हो रहा है? अभी एक किसान से पूछो तो एक तो चौधरी बनता है, वो झंडा उतारेगा जाके लाल किले पे, और उससे पूछो क्या प्रॉब्लम है तो वो बोलेगा छुट्टा पशु प्रॉब्लम। व्हाट इज छुट्टा पशु? जब पशु दूध देने से नट जाता है तो वो छुट्टा पशु। तो आप किसान हो, फिर उसको बेच दो, भले से 2000 ले ले, 500 ले ले, जो, क्योंकि वो मीट के लिए जाता है। ऐसे किसान, तो ऐसे हम ग्रोथ करेंगे, ऐसी हमको उन्नति चाहिए, ऐसे हमारे पूर्वजों ने सोचा था उन्नति होगी। समझ रहे हैं? हमारे पूर्वज पिलग्रिमेज पे जाते थे, ओके, अभी भी जाते हैं कांवड़ पे, लेकिन जिस प्रकार से अब कांवड़ पे जाते हैं और जिस प्रकार से वो जाते थे, आप देख लीजिए, अब जितना कांवड़ में जाएंगे मोटरसाइकिल और वो लेके जाएंगे उतना। हम निर्णय ले लें कि हमें 1 भी किलो लीटर तेल नहीं आयात करना है। कितने पैसे? लाखों करोड़ पर ईयर। कितना तेल मलेशिया, इंडोनेशिया डूब जाएंगे। जिस दिन आप मलेशिया से इंपोर्ट करने का निर्णय लोगे तो वो जो जाकिर नायक बैठा हुआ है ना वहां, वो हाथ जोड़ के आपको प्रस्तुत कर देंगे, ले जाओ भैया इसको। आप निर्णय लो कि मलेशिया से हम इंपोर्ट ही नहीं करेंगे, लेकिन निर्णय नहीं ले सकती गवर्नमेंट, क्योंकि हम तो मरे पड़े हैं, बिना उसके रह नहीं पाएंगे। मेरे तो इतने सारे प्लान हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी दे देसी घी पे, कहे कि मार्केट में घी मिलेगा 100 रुपए किलो, सबको 100 रुपए किलो देसी घी, सब लोग देसी घी खाओ। एक तो ये जो डॉक्टर बन गए, ये एक तो सबसे बड़ी न्यूसेंस है, इनको अता पता कुछ होता नहीं है, और अब चलाया जा देसी। दिखाया है कि काम करता है, कोई सीनियर व्यक्ति आ गया होगा तो थैंक यू मलिक मैडम। तो आई थिंक और कोई प्रश्न है?
यही इसी प्रकार के सवाल और इसी प्रकार के लोग देश को उन्नति नहीं करने मैं बताता हूँ, हंसने का नहीं। देखो, वेयर इज द ब्रेन। आपके बच्चे, हमारी एजुकेशन क्या हो गई है? हमारी एजुकेशन ये हो गई, हमारी एजुकेशन का क्या 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 मायने हो गए? हमारी एजुकेशन के ये मायने हो गए हैं। अच्छा, अंदर बैठ जाते हैं। नहीं, वो मैडम का आदेश, वहाँ बैठ जाता हूँ। देखिए क्या होता है फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में ना, जब तक चर्चाएं नहीं होंगी ना, हम डेवलप नहीं हो पाएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न मैडम ने किया है, इट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो मेरा कार्यक्रम भी है, मुझे निकलना है अभी। देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ ब्रेन की क्या स्थिति है पता है? अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, हमारी एजुकेशन, एडमिशन, कंपटीशन और प्रैक्टिस, इन तीन पे ब्रिलियंट से ब्रिलियंट बच्चे धक्के खा रहे हैं देश में। ओके, आप एडमिशन ही नहीं देते हो। आप मुझे बताओ, 1 लाख सीटें आपकी, 23-26 लाख बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। आप क्या वो 1 लाख ही ब्रेन ही है? बाकी 25 लाख क्या कर रहे हैं? फिर वो लीक होता है पेपर, राइट? ये सब होता है। आप मुझे बताओ, सपोज आपके बच्चे हैं, एक बच्चे का IIT में एडमिशन हो गया, दूसरे का नहीं हुआ, तो क्या वो IIT वाला ब्रेनी है और दूसरा नहीं है? हमारे सारे बच्चे ब्रेनी हैं। ब्रेन की तो उनको चिंता हो जिनको 100 में से आधा ब्रेन है, 1000 में से 5 ब्रेनी है, जो ब्रेनी है बाकी सब स्टूपिड है। हमारे यहाँ तो 1 से 1 फन्ने खाए, तो हमारा तो पूरा ब्रेन है। इस ब्रेन का करेंगे क्या? वो सड़ जाएगा। भाई आम अगर पेड़ पे ही रहेगा या यूरेनियम 235 अगर जमीन में ही दबा रहेगा तो वो तो डिप्लीट होता रहेगा। यू ऑल नो एज केमिस्ट, उसकी तो अपनी हाफ लाइफ है, ब्रेन की भी अपनी हाफ लाइफ है। ब्रेन को जाने दीजिए, जब हमारे ऋषि मुनि पूर्वज थे तो वैन सैंग फाइयन ये यहाँ पे आके पढ़ते थे हमारे यहाँ। जब तक हम उस स्टेज पे पहुंचे तब तक हमें भी बाहर जाके करना पड़ेगा। तो ये ब्रेन ड्रेन, इसीलिए मैं कहता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन होना चाहिए कि गवर्नमेंट बच्चों को भेजे। ये हमारे इतने बच्चे भेज रहे हैं भाई, यूक्रेन में भेज रहे हैं 50,000 बच्चे, 10 साल के लिए रहेंगे। आप ये करोगे, बच्चों को इतना दोगे और इतनी कमीशन गवर्नमेंट को दोगे, और उसके बाद बच्चे यहाँ आ जाएंगे, वो अपना रहे देश में। तो ब्रेन ड्रेन, सॉरी मैडम, ज्यादा है ना। हाँ, नहीं, आजकल बच्चे भी मेरे से पूछते हैं कि सर हम क्यों जाएं, हम तो भारत में पढ़ेंगे, भारत हमारा कौन सा कम है? अरे भाई वसुधैव कुटुंबकम है, पूरा ही देश, पूरा विश्व हमारा है। हम जहाँ जाए, जहाँ हमारे चरण पड़ जाए वहाँ खुशहाली। बताइए, हम तो ऋषि मुनियों के वंशज हैं। हम कोई वी आर नॉट ऑर्डिनरी, हम लोग वी आर भारतीय। माँ सरस्वती, भोलेनाथ जी, हर हर महादेव। तो हमको कहाँ आप ये नाप रहे हो कि भाई ये डेजिग्नेशन और पैकेज, और हम तो बियॉन्ड है। जो सर ने पूछा था कि भाई हम डेवलप कैसे करेंगे कार्बन न्यूट्रली, तो न्याय नहीं न्याय है। आप ये देखो, जब मैं छोटा था गांव में, तो गांव में, पूरे गांव में 1 या 2 कुएं होते थे। हम लोगों के यहाँ, आई वॉज बॉर्न इन राजस्थान, जहाँ पे नहर नहीं, कुछ और साधन नहीं, केवल कुएं का पानी ही साधन था। तो पूरे गांव में 300-400 घरों का गांव, और ले देके 3-4 कुएं थे। एक यादवों का कुआं, एक शेड्यूल कास्ट का कुआं, एक ब्राह्मणों का कुआं, बस, और एक गांव का सम्मिलित कुआं जहाँ पे सब लोग, मतलब थोड़ा सा गांव से बाहर, और 2 जोहड़ थे, इस एंड पे जोहड़, इस एंड पे जोहड़। मैंने कोई गांव नहीं देखा अपने बचपन में, जितने गांव मैंने विजिट किए, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, जितना किया, सब जगह मैंने देखा कि हर गांव में 2 जोहड़ होते थे। एक एंड पे एक जोहड़, एक एंड पे दूसरा जोहड़। भैंस को पानी बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज भैंस की स्किन जो है ना, चमड़ी जो है वो बहुत वो होती है, और काले कलर की होती है, तो सारा सन एब्जॉर्ब कर लेती है लाइट, तो उनको गर्मी बहुत लगती है, तो वो पानी में चली जाती है। तो आपने कहावत भी, मुहावरा भी सुना होगा, गई भैंस पानी में, सुना है ना, गई भैंस पानी। गई भैंस पानी में का क्या कॉन्सेप्ट है पता है? कि भैंस जो है सारी अंदर पानी में चली जाती है, इसीलिए कहते हैं कि गाय की पूंछ पकड़ोगे तो कभी नहीं डूबोगे,
और भैंस की पूंछ पकड़ोगे तो कभी नहीं तिनके बाहर आओगे, क्योंकि वो पानी में चली जाती है, आपको डुबो देगी। और गाय कभी डूबती नहीं, गाय व्हाइट कलर की रिफ्लेक्ट करती है लाइट, ओके, तो उसको गर्मी लगती नहीं, तो वो ऊपर ऊपर रहती है आराम से, और वो भी तैरती है और वो भी दोनों तैरते हैं। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो हमें बच्चों को सिखाने हैं। आज बच्चों को यही नहीं पता कि कैसे बोते हैं, गुठलियां कैसे बोते हैं, कैसे पेड़ होते हैं, कैसे कटाई होती है, कैसे बुआई होती है, कैसे खलिहान लगते हैं, कैसे गेहूं निकलता है, कैसे धान निकलता है, कुछ नहीं पता बच्चों को। बच्चों को क्या पता है, फटाफट फटाफट 10+2, फिर AI/ML है ना, AI आ गया, ML आ गया, बहुत इट इज अ बिग प्रॉब्लम, जॉब चले जाएंगे, जॉब जॉब जॉब, और जो रियल जॉब है वो करना नहीं। अरे साहब, सबसे पहले टारगेट यही होना चाहिए, खेतों में जाओ काम करो। आप ये देखो आपके कैंपस में कितने पेड़ हैं, आप बता नहीं सकेंगे, आप इतने 12, 13, 14, 15, 17 साल से हैं यहाँ पे, you won't be able to answer this question, how many trees you have in this campus, you won't be, because counting ही नहीं हुई trees की। आपको ये भी नहीं पता कि आपके इस ऑडिटोरियम के बाहर कौन कौन से पेड़ हैं, you don't even recognize them। मैं जब भी जहाँ भी जाता हूँ पेड़ देखता हूँ कौन कौन से पेड़ हैं, ओके। तो आई थिंक बहुत टाइम हो गया ना, सॉरी पूरा आपका देखिए, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पेड़ लगा देता हूँ। ग्रेटर नोएडा में मैं 9 साल पहले आया, आते ही मैंने रोड पे, हमारे घर के बाहर रोड जो है, नॉट इन आवर ओन हाउस, वी हैव अ स्मॉल गार्डन इन आवर विला, वी हैव अ गार्डन, उसमें तो ठीक है, बाहर रोड पे लगा दिए पेड़। और इतनी धूप में मैं बाल्टियों से पानी देता था, लोग हंसते थे, ये साहब ये देखो फॉर्मर वाइस चांसलर हैं, ये प्रेसिडेंट हैं और ये क्या पेड़ लगा रहे हैं। और लोग डिस्कस करते थे, साहब दिस इज नॉट गुड आइडिया, ये अथॉरिटी के एरिया में पेड़ लगा रहे हैं, दिस इज नॉट गुड, ऐसे जंगल हो जाएगा। पार्क में हमने पेड़ लगा दिए खूब सारे, जंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना हो। अब जब वो पेड़ बड़े हो गए, सहतूत आने लगे, तो रिश्तेदारों को बुलाते हैं, आ जाओ सहतूत लग रहे हैं, यहाँ हरा लग रहा है, लाल लग रहा है। कैन यू इमेजिन, आप आके देखना हमारे सेक्टर में, आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ प्रोफेसर खांडल रहते हैं, जैसे ही आप एंटर करोगे बाहर से, आप समझ रहे हो। तो ये हमारे ऊपर है, बच्चों को देखना चाहिए। कल्पवृक्ष, रुद्राक्ष, मैं जब लखनऊ में था एज वाइस चांसलर, तो वहाँ वास्तु दोष था इंस्टीट्यूट में, जहाँ पूरा दक्षिण में द्वार है उनका, और वहाँ वो जो हॉस्टल्स हैं वहाँ पे कब्रिस्तान है, तो वास्तु दोष था। वास्तु दोष को दूर करने के लिए मेन गेट पे मैं नारियल लगा के आया, सुपारी लगा के आया, कपूर लगा के आया, बड़े बड़े हो रहे हैं, रुद्राक्ष, कल्पवृक्ष, ये सब लगा के आया वहाँ। रुद्राक्ष तो मेरे ऑफिस के, मतलब मेरी सीट के बिल्कुल पीछे मैंने रुद्राक्ष लगाया। तो जब तक आप ये करेंगे नहीं तब तक आप कैसे, तो ये इम्पोर्टेंट है। प्लांटेशन करते हैं सर बहुत सारे, लेकिन उनकी ग्रोथ नहीं पेड़ों को ग्रोथ की चिंता ही नहीं करनी, आपको तो लगा देना है, अपने आप ग्रो करते हैं। हम तो भारत माँ इतने, यू नो, जिस देश में गंगा बहती है हम उस देश के वासी है। आपको तो गुठली बो देनी है, फिर अपने आप देखेगी वो, लेकिन हमसे इतना भी नहीं होता, बोई हुई को उखाड़ के चले जाते हैं। अरे साहब जामुन, नहीं जामुन पेड़, अरे साहब गाड़ियों पे गिरती है, ये होता है। ये नहीं पता कि आपका तो देश का नाम है जम्मू द्वीप है, आपके तो भगवान राम नील वर्ण क्यों है पता है? पूरे जीवन भर वो जामुन ही खाते थे, आपको पता है ये बात? कुछ नहीं पता आप लोगों को, क्या पढ़ाते हैं। देखिए अब ये देखिए, 50 रुपए की 200 ग्राम जामुन, ही इज वेरी राइट। ग्रेटर नोएडा एक ऐसा सिटी है, न्यू सिटी है, जिसके रोड पे जामुन है दोनों तरफ, है ना, जामुन ही जामुन है। आपको हैबिट है कि आप खरीद के लाओगे, आप वहाँ बैठ जाओ नीचे, जामुन लो, खूब खाओ। अच्छा, और अपनी जामुन लगाओ अपनी। जब आप देखो मेरे सेक्टर में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ एक नाइजीरियन रहता है, क्या कह रहे हो? कितनी है? देखिए आपके यहाँ बच्चे कितने होंगे, 1000 तो होंगे बच्चे, 5000 बच्चे हैं, ठीक है, तो कम से कम भी नहीं तो 20 बच्चों के पीछे एक जामुन होनी चाहिए। तो कितने जामुन? 250 पेड़ होने चाहिए। आप 3 साल की बात कर सकते हैं। माय डियर सर, जब मैं डायरेक्टर श्रीराम इंस्टीट्यूट था
तो मैंने गार्डन्स डेवलप किए, ये आंवला गार्डन, ये सैतूत गार्डन। आप देखो वहाँ कार्ड पंच होता था 8:30 बजे, ठीक है। तो जब वो सैतूत का पीरियड आता था, इतने बड़े बड़े सैतूत, बड़े बड़े रेड कलर के सैतूत स्पेशल लगाए थे। सब लोग कार्ड पंच टाइम पे करते थे मॉर्निंग में, तो सैतूत गिरे हुए होते और सब लोग सैतूत खाने के चक्कर में पूरा टीम मॉर्निंग में सबका अटेंडेंस फुल 2 महीने के लिए। तो ये सब करो। सर ये सारी चीजें, जैसे मैं अपने दादाजी को देखूं, वो गांव से आए हैं, उनको ये सारी चीजें पता है। हम लोग अर्बन में ही बड़े हुए नहीं। देखो मैडम जी, सर ये देखो एक मिनट देखो मैडम, ऐसा ये है कि अर्बन में पढ़े लिखे बड़े, आपको कोई रोक रहा है चीजें? अर्बन में क्या है नहीं, सब कुछ चीजें हैं जो गांव में है वो यहाँ अर्बन में भी है। ये मैंने आपको सारी यही की बातें बताई है। रुद्राक्ष का मैंने अजान वृक्ष, आप नेम ए ट्री एंड आई हैव प्लांटेड इट देयर। मैं सोचता हूँ ये पेड़ है, मैं सोचता हूँ उसको हमारे यहाँ होना चाहिए। आप एक भावना रख लो, किसी भी शहर में जाओ, आपको कोई पेड़ अच्छा लगे, ये पेड़ मेरे यहाँ होना चाहिए। ऐसे ही करता हूँ मैं। जब मुझे लोग बुलाते हैं, मान लीजिए हरिद्वार गया, पहले से उनको पता होता है इनको पेड़ों का, तो रुद्राक्ष भेंट करते हैं मुझे। पूना गया, मुझे अजान वृक्ष भेंट करते हैं। तो गुवाहाटी गया, वो मुझे सुपारी भेंट करते हैं। मैं लाके सुपारी यहाँ लगा देता हूँ, इतनी अच्छी हो रही है जी। क्या तो आप वो तुलसी डाले दो, ये कॉन्सेप्ट में ही नहीं है, कॉन्सेप्ट में ही नहीं है, हमारे कॉन्सेप्ट में ही नहीं है। देखिए, जब जिस प्रकार से आपकी सोच है, जब सोच आपकी देसी घी की होगी तो उसकी उपज भी देसी घी की होगी, और सोच आपकी तेल की है तो खाए तो घी से, नहीं तो जाए घी से। ओके, फंडा है ये, बहुत अधिक हो गया ना प्रतीक्षा मैडम, ज्यादा समय ले लिया ना मैंने, तो सब मैं निकलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। हम अपने देश से निकालेंगे। आ जाओ सब लोग इकट्ठा एक ग्रुप फोटो ले लेते हैं। सर जी सर प्लीज सर भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए सब जय गाथा जय जय मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप में से 50% लोग हैं जिनको राष्ट्रीय गान पूरा नहीं आता, और आप अध्यापक हैं, चैलेंज देके जा रहा हूँ, निवेदन है आपसे, पूरा नहीं आता आप लोगों को, सबको मैंने देखा है जब आप बोल रहे हैं, साथ मिल के गा लेते हैं। इंडिपेंडेंटली आपको कोई बोले राष्ट्रीय गान गा दो, आप पूरा राष्ट्रीय गान नहीं गा सकते त्रुटि बिना त्रुटि के। ट्रू और नॉट ट्रू? बोल तो दो यार, गा सकते हो आप पूरा? सुनाओ यार, सुनाओ सुनाओ है, सुनाओ। दो लोग क्यों अकेले? वही तो मैंने कहा नहीं, गाओ आप, सुनाओ। टोन में गाएंगे तभी याद आएगा। नहीं आएगा ही नहीं। हाँ जी, आगे अगली लाइन पे चले जाए। नर्वस नहीं, क्या पढ़ाते हो? नहीं, मैथ्स। आप कहानी मत बताओ, मैंने एक बात बताई है कि हम लोगों को नहीं आता, और ये जो बगल में आप खड़े ही नहीं आता। त्रिपाठी जी
आ रहा है, आ रहा है।